Hello, students. How are you all? This is Abhishek, probably your new teacher. And today I am going to make you learn natural vegetation and wildlife. Okay, this is sixth lesson of your geography, class 7. So, without any further ado, let's start this chapter. In this chapter, we are gonna know lots of things. So, first of all, we'll discuss about natural vegetation and wildlife. So basically, what is natural vegetation? What is natural vegetation? Natural vegetation means the naturally grown forest without any human aid is called natural vegetation. You can define it in this way: natural vegetation. What is natural vegetation? So you can say it refers to a community of plants which has grown naturally without any human aid, या फिर इंटरफेरेंस लिख सकते हो, ह्यूमन एड, without any human aid. Okay, and has been undisturbed. Okay, so natural vegetation, it refers to a community of plants which has grown naturally without any human aid. Without any human aid का मतलब क्या हुआ? It means no human has ever provided these plants or these community of plants to water and other minerals. These plants has acquired their needed materials like water and nutrients from soil and environment, you can say. So without any human aid, the community of plants that are grown is called natural vegetation. Example में आप क्या लिख सकते हो? What is the example? Example, forest. Different kind of forests are there. Forest इंसान लगाते हैं? नहीं. Forest just grows naturally. Okay. Grassland also, grasslands को भी इंसान नहीं लगाते हैं. It grows naturally. Okay. और बाकी जो मरुस्थल रेगिस्तान में जो वेजिटेशन होता है उसे भी हम नहीं लगाते हैं. इट ग्रोज नेचुरली. ओके, गॉट इट? समझ में आया? एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. इफ समवन आस्क्स यू अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, हाउ विल यू डिफाइन? देयर आर मेनी वे टू डिफाइन दिस. आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो द वेजिटेशन दैट ग्रोज without any human interference is called natural vegetation. Okay, without any human interference. Human interference का मतलब क्या हुआ? हम बाकी जो plants हैं जिसे हम लगाते हैं, like vegetables हो गया, wheat हो गया, agricultural plants हो गया, उसको लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? You'll have to provide the plants with water and other nutrients like fertilizers, etc. Okay, but in case of what? In case of forest, we means human does not provide forest the basic nutrients or water. They acquire their nutrients and water from very surroundings, or you can say nature. Okay, so this is all about natural vegetation. Natural vegetation में हमने पढ़ा
क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स. नाउ विल स्टडी अबाउट what factors affects the natural vegetation. Okay, what factors influences the natural vegetation. Got it? तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं? आप हमें बताओ, सोच के बताओ. अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रियली इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन. फिर मैं इसे इरेज करता हूं और आपको बताता हूं. ठीक है? द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस नेचुरल वेजिटेशन. फैक्टर्स दैट अफेक्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हो इन्फ्लुएंस. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है? पहला क्या हो सकता है? व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड एंड सॉइल. ओके, लैंड एंड सॉइल. लैंड का मतलब क्या है? अगर आप प्लेन लैंड पे हो और वो फर्टाइल है तो क्या होगा? वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज या फिर फॉरेस्ट ग्रो करेंगे. ठीक है? अगर इफ यू आर इन माउंटेनियस रेंज, ओके, अगर आप माउंटेन या फिर प्लेट्यू में हो तो वहां पे सिमिलर टू दिस यू कांट फाइंड द ट्रीज लाइक प्लेन लैंड. ओके, समझ रहे हो? मतलब लैंड, प्लेन लैंड पे जो है वो अलग तरीके के वेजिटेशन ग्रो करेंगे एंड एलिवेटेड लैंड जो कि जिन्हें हम माउंटेन्स या प्लेट्यू बोलते हैं, वहां पे जो वेजिटेशन ग्रो होगा उनका क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगा. ठीक है? समझ रहे हो? तो लैंड समझ रहे हो. सॉइल का मतलब, सॉइल जैसे कि कुछ वेजिटेशन है जो सॉइल पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि ब्लैक सॉइल है. इंडिया में कई टाइप के सॉइल पाए जाते हैं. ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है. ठीक है? तो एलुवियल सॉइल में क्या ग्रो हो सकता है? एलुवियल सॉइल में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ग्रो होते हैं लाइक व्हीट, बैरली, मेज, सुगर केन एक्सेट्रा. ओके, बट रेड सॉइल में क्या होगा? ओनली थॉर्नी श्रब्स जो कि मरुस्थल में उपजते हैं. ठीक है? और वैसे ही ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या निकलेगा? क्या ग्रो कर सकते हो आप? कॉटन के प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हो. तो वेजिटेशन जो है वो डिपेंड करता है लैंड पे और टाइप ऑफ सॉइल पे. समझ में आया? ठीक है? जैसे जैसे आप पहाड़ों पे ऊंचाई पे जाते हो तो जो लैंड, जो पर्वत हो, सॉरी, जो ट्रीज होते हैं वो काफी लंबे और ऊंचे होते हैं, लेकिन उनकी जो पत्तियां होती है वो पतली पतली होती है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर में होती है. ठीक है? ऐसे इनको कॉनिफरस ट्री बोला जाता है. इनको क्या बोला जाता है? कॉनिफरस ट्री बोला जाता है. बट आप इसके फुट हिल्स पे अगर रहोगे, ये स्टोरी है ना, सलीमा की स्टोरी है, उसमें आपको पता चलेगा. इफ यू गो थ्रू द स्टोरी देन यू विल फाइंड दैट सलीमा अंडरस्टैंड when she was on the foothills of the Himalayas, there was plenty of trees like sal and teak, okay, with huge with wide leaves. But जैसे जैसे वो ऊपर जाती है रोहतांग पास के थ्रू, तो उसको पता, वो देखती है कि वो जो फॉरेस्ट थे जिनमें सॉल और टीक के पेड़ लगे हुए थे वो अब धीरे धीरे डिसअपेयर होते जा रहे हैं. अब कैसे ट्रीज आ रहे हैं? तो ऊंचाई पे जाने के साथ ये पतले पतले छोटे छोटे पत्ते वाले जो ट्री आ रहे हैं, लंबे लंबे, जो कि हिमालय के स्लोप पे उगे हुए हैं, उनको उसने क्या समझा कि ये क्या है? दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रीज दैट सी फाउंड हियर. ओके, तो इसे बोला जाता है कोनिफेरस ट्री. ठीक है? कोनिफेरस ट्री. तो हम ये कह सकते हैं कि लैंड और सॉइल पे डिपेंड करता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. पहला. दूसरा किस पे डिपेंड करता है? अभी ये भी समझाते हैं. दूसरा इन्फ्लुएंस होता है किस पे? तो दूसरा होगा
लिख लेना, फैक्टर्स लिख लेना। टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ओके, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है क्या, नेचुरल वेजिटेशन। टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा और वाटर बॉडी वहां पे है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मतलब मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉइस्चर इंक्रीज होगा, ठीक है। इससे इवेपोरेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन होगा इसका मतलब रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा। रेनफॉल जब बहुत ज्यादा होगा तो जो भी फॉरेस्ट होंगे, जो भी फॉरेस्ट खुद से ग्रो करेंगे वो क्या होंगे, वो एवरग्रीन होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। कौन से फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, द ट्रीज और द फॉरेस्ट दैट डज नॉट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर। वो फॉरेस्ट या वो पेड़ जो अपने सारे पत्ते एक ही साथ नहीं सेट करते हैं, नहीं गिराते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। अच्छा, ये पत्ते गिराने का क्या मतलब फंडा है, वाई ट्रीज सेट्स देयर लीव, क्यों? इसका एक रीजन ये है, जस्ट टू कंजर्व द वाटर। पत्ते इसलिए पेड़ के गिरते हैं बिकॉज वाटर की कमी हो जाती है, तो पेड़ को सरवाइव करने के लिए अपने अदर पार्ट्स को मिनरल्स या फिर वाटर पहुंचाना होता है, इसलिए पत्तों को वो छोड़ देते हैं ताकि जो पानी रहे वो किसके लिए अवेलेबल हो, अदर पार्ट्स ऑफ द ट्रीज के लिए अवेलेबल हो, इसलिए वो पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन जहां पे बहुत सारा रेन हो रहा हो, बहुत सारा रेन, कितना रेन, जहां पे बहुत सारा रेन, मोर देन 200 सेंटीमीटर, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे तो अब्यूडेंट अमाउंट ऑफ वाटर है ऑलरेडी, तो ये जो ट्रीज होंगे ये तो पत्ते गिराएंगे ही नहीं, बहुत कम गिरेगा पत्ता, एक साथ इनका पत्ता गिरेगा नहीं, इसलिए ये सालों भर क्या दिखते हैं, हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मॉइस्चर बढ़ेगा और बरसात ज्यादा होगी, बरसात ज्यादा होगी तो फॉरेस्ट की क्वालिटी क्या होगी, एवरग्रीन होगी। इसी तरीके से जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझाता हूं इसको, कैसे टेम्परेचर और ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे नेचुरल वेजिटेशन को। हियर इज आवर ब्यूटीफुल अर्थ, I hope you are friendly with this figure. This is 0 degree latitude, you can say it. Equator हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मींस टुवर्ड्स नॉर्थ या फिर टुवर्ड्स साउथ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। दीज आर इंपॉर्टेंट लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो एरिया है इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड लाइट थ्रू आउट द ईयर, यहां से लेकर यहां तक। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, इस एरिया को टॉरिड जोन बोलते हैं। तो इस एरिया के जितने भी फॉरेस्ट होंगे वो कौन से फॉरेस्ट होंगे, इस एरिया के जितने भी फॉरेस्ट होंगे वो कौन से फॉरेस्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होगी, तो इस एरिया का जो फॉरेस्ट होंगे वो कौन से फॉरेस्ट कहलाएंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा तो रेनफॉल कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, रेनफॉल कम होगी, रेनफॉल कम होगी तो फिर कैसे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सॉरी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो इसमें होता है, लेकिन बाकी उधर इसके ऊपर जाओगे या इसके नीचे जाओगे तो डिसाइडियस फॉरेस्ट मिलेंगे और आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। और भी ऊपर जाओगे आप, इस लैटिट्यूड पे जाओगे, ठीक है, 45 डिग्री लैटिट्यूड पे जाओगे साउथ और नॉर्थ, तो यहां से आपको ग्रासलैंड स्टार्ट हो जाएगा, ग्रासलैंड, ठीक है, समझ रहे हो। यहां से आपको इस एरिया में आपको मिलेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, गॉट इट। और जो सब ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे आपको डिसाइडियस फॉरेस्ट मिलेगा, गॉट इट।
तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। गॉट इट? समझ रहे हो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है देन मस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और ऑन माई व्हाट्सएप। गॉट इट? सो हमने क्या पढ़ा कि क्लाइमेट डिपेंड करता है। क्लाइमेट जो होता है वो इफेक्ट करता है हमारे किसको? क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो हमारे नेचुरल वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? तो एक तो टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर मतलब लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ही तो हमारे टेम्परेचर को डिसाइड करता है। ठीक है, पढ़े हो ना? जो लैटिट्यूड होते हैं अर्थ के ग्लोब पे, वही बताते हैं कि किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक कितना हीट होता है। ठीक है, कितनी गर्मी होती है। तो क्लाइमेट में टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? मॉइस्चर हो गया। मॉइस्चर पढ़ लिया हमने। और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? बताओ। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द नेचुरल वेजिटेशन? मुझे लगता है हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है, एक तो लैंड, क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्लेन लैंड से ऊपर की तरफ जाते हो तो देन यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज। ओके, यहाँ पे आप अलग ट्रीज पाओगे, यहाँ पे आप फुट हिल्स पे अलग ट्रीज पाओगे। बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो बारिश कम होगी। बारिश कम होगी तो जो पत्ते होंगे उनको पानी अच्छा से मिलेगा नहीं, तो पतले क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। तो ये ऊपर जाने के बाद से पत्ते जो होते हैं इनके पतले होते हैं और ये ट्रीज काफी लंबे हो जाते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है कोनिफेरस ट्री। ठीक है, ये समझ गया? ओके, अब देखो, ये था नेचुरल वेजिटेशन। अब वाइल्ड लाइफ क्या होता है? तो इसी नेचुरल वेजिटेशन में, इन्हीं फॉरेस्ट में जो भी एनिमल पाए जाते हैं, जो एनिमल, ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर हमें वाइल्ड लाइफ को बताना हो। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। जंगल तो हम लगाते नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम वाइल्ड लाइफ। सो हम ये कह सकते हैं द एनिमल्स दैट आर फाउंड इन forests or in grasslands are called wild life. ओके, तो अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। अलग अलग फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ अलग है, तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करने वाले एनिमल ही वहां पे पाए जाएंगे। इन द सेम वे अगर आप उससे थोड़ा कम टेम्परेचर वाले एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेंगे डिसाइडियस फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वहां पे जो पेड़ होंगे वो घने नहीं होते हैं। घने नहीं होने के वजह से वहां पे बड़े बड़े जानवर आपको मिल सकते हैं, जैसे कि हाथी, शेर, टाइगर, ये सब एनिमल वहां पे आपको मिल जाएंगे। इस तरह से ग्रासलैंड जो है वो भी एक नेचुरल वेजिटेशन का एग्जांपल है। तो ग्रासलैंड में भी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल यू कैन फाउंड, लाइक आप वहां पे रैबिट आपको मिल सकता है, डियर मिल सकता है। ओके, उसी तरीके से आप अगर पोलर रीजन में जाओगे तो वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे बहुत ही कम वेजिटेशन ग्रो होता है, बिकॉज देयर इज नो रेनफॉल और वेरी लेस रेनफॉल। तो वहां पे मोजेस और मोथ्स उगते हैं बस। तो वहां पे क्या होंगे? कौन से एनिमल होंगे? ऐसे एनिमल जो वहां के क्लाइमेट में सरवाइव कर सके। ठीक है, तो वहां के एनिमल जैसे कि
पोल्स हैं, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो वहां पे कैसे एनिमल होंगे? पेंगुइन, पोलर बियर, ओके, पोलर डॉग्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही है क्या? वाइल्ड लाइफ, ठीक है, समझ रहे हो? वाइल्ड लाइफ किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल वेजिटेशन पे। जैसा नेचुरल वेजिटेशन होगा, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन होगा, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाले एनिमल वहां पे पाए जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि अभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अमेजोन का जो जंगल है, मान लो ये क्या है, ये अफ्रीका है, सॉरी साउथ अमेरिका है, तो ये जो ब्राजील वाला हिस्सा है, यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है, इसी को एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इसमें जो बहुत ही खतरनाक आपको स्नेक्स मिल जाएंगे, जो पेड़ पे रहने वाले जानवर होंगे, क्योंकि ये तो इतने घने घने जंगल होते हैं यहाँ पे, इतने घने घने जंगल होते हैं कि अब बड़े जानवर यहाँ पे मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये जंगल क्या है, ऑलरेडी पानी में सबमर्ज रहता है, आधा इसका जो हिस्सा है वो पानी में सबमर्ज रहता है। तो यहाँ पे वही जानवर मिलेंगे जो आपको पेड़ पे रहते होंगे, ठीक है, समझ रहे हो? उसी तरीके से आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाओगे, सॉरी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाओगे, तो इंडिया वहां का सबसे अच्छा एग्जांपल है, करेक्ट? चलो इंडिया का हम मैप ही बना देते हैं थोड़ा सा, ये देख लो, उतना जगह नहीं है। तो यहाँ पे आपको इधर का जो है, यहाँ कौन से जंगल मिलेंगे आपको? तो वही टेम्परेट एवरग्रीन जंगल मिलेंगे हिमालय के फुट हिल्स में, ये पूरा हिमालय है, ये वाला एरिया हिमालय के फुट हिल्स में ये मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ये है वेस्टर्न घाट हमारा केरला, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, मतलब रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, ये वाले फॉरेस्ट यहाँ भी मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, तो यहाँ के एनिमल्स अलग होंगे, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल वेजिटेशन के क्लाइमेट पे या नेचुरल वेजिटेशन पे। समझ गए आप लोग? आई होप समझ गए होंगे। गॉट इट? और बाकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप लोगों की? सुन रहे हैं कि 14 तारीख से स्कूल खुलने वाला है, 14 सितंबर स्कूल इज गोइंग टू बी रीओपन, सो इट इज काइंड ऑफ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। और इसमें क्या पढ़ना है? लेट मी सी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, ये 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा? फॉरेस्ट। पहला क्या होगा? फॉरेस्ट, मतलब ज्यादा रेनफॉल जिस एरिया में होगा उस एरिया में जो नेचुरली ग्रो होंगे प्लांट्स, वो फॉरेस्ट बनाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट के बाद से अगर कम रेनफॉल होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है एक साल में, तो वहां पे बनेंगे ग्रासलैंड, ठीक है। और इससे भी कम, अगर 70-50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो इसका मतलब ये तो नेग्लिजिबल रेनफॉल है। तो जहां पे बारिश नहीं होगी वहां पे क्या होगा? रेगिस्तान होगा, डेजर्ट होगा। और डेजर्ट में कौन से प्लांट्स उगेंगे, कौन से वेजिटेशन उगेंगे? तो थॉर्नी प्लांट्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पढ़ाई करना है। तो ये फर्दर डिवाइड होंगे, इसे तो नहीं डिवाइड करेंगे, लेकिन ये फॉरेस्ट है, ये कई जगह पे, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, TRF, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सेम ही है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये क्या होगा? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट, ओके। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट या मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आप बोल सकते हो। बहुत सारे फॉरेस्ट के टाइप्स आपको पढ़ने हैं। ग्रासलैंड में भी क्या होगा? टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा, ठीक है। इसी तरह से थॉर्नी श्रब्स हैं। तो ये हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है? 3 ग्रुप्स में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और
थॉर्नी प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इनका ग्रोथ ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। गॉट इट? समझ रहे हो? चलो, तो फॉरेस्ट में हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉरेस्ट? कोई बता सकता है फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट नेचुरली ओके, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं नेचुरली ग्रोन वेजिटेशन फुल ऑफ ह्यूज एंड डेंस ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। यही होता है ना फॉरेस्ट में, क्या बड़े बड़े आप पेड़ देखते हो, घने पेड़ देखते हो जिससे एक पूरा एरिया कवर होता है, उसी को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हो द एरिया कवर्ड बाय ह्यूज एंड डेंस ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। वी नो फॉरेस्ट ग्रोज नेचुरली। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट कैसे ग्रो होता है नेचुरली। ह्यूमन एड वहां पे बिल्कुल नहीं होता है, ह्यूमन अपना इंटरफेरेंस नहीं दिखा। हाँ, ह्यूमन एक जगह पे इंटरफेरेंस दिखाते हैं, कहां पे? फॉरेस्ट को क्लीन करने में, मतलब डिफॉरेस्टेशन करने में ह्यूमन आगे हैं, लेकिन फॉरेस्टेशन करने में ह्यूमन मीन्स एफॉरेस्टेशन नहीं करते हैं ह्यूमंस। ओके, सो ह्यूमंस आर डेंजरस थिंग फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। गॉट इट? इसीलिए हमें पढ़ाया जा रहा है ये बात कि आप नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बच्चों को पढ़ा दो, क्योंकि बच्चे तो आखिर क्या है? ह्यूमंस ही हैं, एंड दे आर द रियल थ्रेट फॉर दीज थिंग्स। मतलब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? हम हैं। तो इसीलिए हमें पढ़ाया जा रहा है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो हम अभी इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, हमने ये पढ़ा एक टॉपिक। तो ये फॉरेस्ट पढ़ लिया आपने। अब फॉरेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। एक पहला फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फर्स्ट फॉरेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया। फॉरेस्ट में ये एक नेचुरल वेजिटेशन का एक पार्ट है फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट का एक पार्ट होता है जिसका पहला नाम क्या है हमें पढ़ेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसी को हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ? वी नो दिस इज इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं या टॉरिड जोन बोलते हैं। आप जानते हो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इक्वेटर के आसपास के बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं। जैसे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं। तो इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट होगा वो क्या होगा? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहा जाएगा। अब देखो, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छा खासा होता है। इक्वेटर के तो आसपास इतना रेनफॉल होता है पूछो मत। 400 सेंटीग्रेड से ज्यादा 400 सेंटीमीटर पर एनम से ज्यादा रेनफॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेटर के आसपास के जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोला जाता है। और इनकी क्या खासियत होती है कि ये तो यहाँ पे हार्डवुड पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? हार्डवुड वाले जंगल पाए जाते हैं। हार्डवुड जैसे कि
रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, शीस, और क्या हो गया, इबोनी हो गया, ये सब एग्जाम्पल है हार्डवुड के। ये कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल रेंज में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बारिश बहुत जबरदस्त होती है, बिकॉज इसका क्या प्राइमरी रीजन क्या है, सन जो है वो हमेशा चमकते रहता है इसी रेंज में। तो सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पे पड़ेगा सन का? यहाँ पे मान लो सन चमक रहा है तो सबसे ज्यादा लाइट इस एरिया में पड़ेगा, इक्वेटर के आसपास। तो इक्वेटर के आसपास सबसे ज्यादा लाइट पड़ेगा, और यहाँ पे वाटर बॉडी तो है ही, ये पूरा एरिया ही क्या है, पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, गॉट इट। तो इसके जो आसपास वाले जो फॉरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होंगे, बिकॉज यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा एंड देन बहुत ही जोर की बारिश होगी। तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है, इस वजह से यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफी घने होते हैं। इनमें जो हार्डवुड वाली ट्रीज पाई जाती हैं, ठीक है, और बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े बड़े। इनकी जो हाइट होती है वो 70 मीटर से भी ज्यादा की होती है, ठीक है। और इनका जो पेड़ का जो लीव्स होते हैं ना, द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर वेरी ब्रॉड बिकॉज देयर इज नो स्कैरसिटी ऑफ वाटर एट ऑल, ओके। वाटर की वहां पे कोई भी कमी नहीं होती। सो वहां पे जो पत्ते भी नहीं छोड़ते हैं, क्या पत्ते भी नहीं छोड़ते, बिकॉज पानी की तो कमी है नहीं। अब देखो ये जो पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और घने घने पेड़ हैं, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलके ऐसे कैनोपाई बना लेते हैं। कैनोपाई का मतलब एक तरीके से टेंट की तरह ये बन जाते हैं। टेंट की तरह बनने के बाद से क्या होता है, सनलाइट जो होता है वो नीचे की तरफ दिन में भी नहीं आ पाता है, नीचे की तरफ डे टाइम में भी इन जंगलों में सनलाइट नीचे की तरफ नहीं आ पाता है। बताओ इस जंगल में रहना पॉसिबल है? लेकिन आप पढ़ोगे इसमें, इस जंगल में भी लोग आदिवासी वगैरह रहते हैं, ठीक है, गॉट इट। और जानवर भी रहते हैं, स्नेक्स सबसे ज्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट समझ में आया होगा। ये फॉरेस्ट किस एरिया में लाई करते हैं, तो ट्रॉपिकल एरिया में लाई करते हैं। इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं वो किस तरह की होती है, हार्डवुड की होती हैं, जैसे कि इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉरेस्ट, ओके। और क्या, हार्डवुड हो गया। इनके जो पत्ते होते हैं काफी ब्रॉड होते हैं, ये अपने पत्ते सालों भर छोड़ते नहीं है एक बार में, इसलिए हमेशा हरे भरे दिखते हैं। इन्हें इसी वजह से इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। रेन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे इस एरिया में, इसलिए इन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, गॉट इट। और यहाँ पे सनलाइट जो होती है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, बिकॉज पत्ते बहुत चौड़े होते हैं और वो कैनोपाई बना लेते हैं, टेंट बना लेते हैं, तो सनलाइट नहीं आती है। और सनलाइट नहीं आने की वजह से सारे पेड़ों में एक तरीके से होड़ लग जाता है जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ने का, हम सनलाइट को ज्यादा एब्जॉर्व करेंगे, हम करेंगे, इस वजह से हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है ट्रीज की, ठीक है। समझ रहे हो? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, थैंक यू गाइस।